Hello student, now in Unix and cell programming we move ahead in commands. In last session we saw the commands related to process. Now there are different types of commands are there: cp, ls, cd, mkdir, but that all commands are divided into two different categories. Now today we show that two different categories. The commands are divided into two different categories, that is internal command and external command. Now what is internal command? Internal commands are known as an built-in command. Internal command कैसे commands है? Built-in commands है, right? Now built-in command means के shell खुद create करता है, but that commands does not create any kind of process. That command does not create any kind of process. So the commands which are not create any kind of process and which is built-in commands are known as an internal commands. Yes, internal commands means what? Internal commands built-in commands है और वो कमांड कोई भी प्रोसेस क्रिएट नहीं करता है, कोई भी प्रोसेस क्रिएट नहीं करता है. सो द कमांड्स विच आर नॉट क्रिएटिंग एनी प्रोसेस एंड विच आर इनबिल्ट कमांड इन शेल, that is known as an internal command. Internal commands are something which is built in into the shell. For the shell built-in commands, the execution speed is very high, and it is because no process needs to be spawned for executing it. फाइन, जैसे मैंने बोला कि जो बिल्ट इन कमांड है और जो प्रोसेस क्रिएट नहीं करता है वो इंटरनल कमांड है. अगर बिल्ट इन कमांड है तो उसका एग्जीक्यूशन स्पीड जो होगी वो बहुत फास्ट होगी, और फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड किसकी होगी? जो कोई भी सब प्रोसेस को क्रिएट नहीं करता है उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड ज्यादा होगी. सो दैट टाइप्स ऑफ कमांड्स आर नोन एज एन इंटरनल कमांड. फॉर एग्जांपल echo, cd, echo, and you can write in double quotes hello. It means directly print hello. It will doesn't create any process. Same way cd. cd is also an internal command which is not create any kind of process. It will just simply get change the directory. Find your current directory change करके देगा. Fine. यस, सो cd, echo ऐसे बहुत सारे कमांड्स है. mkdir है. यस, जो कोई भी प्रोसेस क्रिएट नहीं करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल कमांड्स. सेम वे एक्सटर्नल कमांड्स. सो एक्सटर्नल कमांड्स जो है दैट आर नॉट बिल्ट इन कमांड, वो कोई शेल का बिल्ट इन कमांड नहीं है. एंड द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द कमांड्स विच इज क्रिएटिंग अ न्यू प्रोसेस व्हेन इट गेट्स एग्जीक्यूटेड, that command is known as an external command. जो built-in command नहीं है और जब भी कोई command execute होता है तो नई एक प्रोसेस क्रिएट करता है तो वो कमांड को हम एक्सटर्नल कमांड बोलेंगे. आर यू गेटिंग? इंटरनल मतलब बिल्ट इन कमांड, एक्सटर्नल मतलब वो बिल्ट इन कमांड नहीं है. इंटरनल कमांड कोई भी प्रोसेस क्रिएट नहीं करता है जब वो एग्जीक्यूट होता है, बट एक्सटर्नल कमांड कोई नई प्रोसेस क्रिएट करता है व्हेन इट गेट्स एग्जीक्यूटेड. सो द एक्सटर्नल कमांड आर नॉट बिल्ट इन इनटू द शेल. These are executable present in a separate file, and when an external command has to be executed, a new process has to be spawned and command gets executed. नया command execute होगा और एक सब process create होगी. So वो command को हम external command बोलेंगे. For example, cat command है, ls command है, yes, t command है, तो ये सारे external command है. Why? Because when get command is gets executed, it is exactly executed at the bin directory. usr bin, यूजर की bin directory के अंदर execute होता है और वो एक नई प्रोसेस क्रिएट करता है. So that's why cat is an external command. Same way ls is also executed and create a new process. So ls is also known as external command. Fine. जो कमांड प्रोसेस क्रिएट करता है वो एक्सटर्नल कमांड है, जो प्रोसेस नहीं क्रिएट करता है वो इंटरनल कमांड है. फाइन. नाउ नेक्स्ट दैट इज हाउ टू क्रिएट द शेल. सेल कैसे क्रिएट होगा? यस, नाउ
व्हेन द सिस्टम मूव्स इनटू द मल्टी यूजर मोड, जब सिस्टम मल्टी यूजर मोड में चला जाता है तो INIT जो प्रोसेस, INIT मतलब इनिशियलाइजेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है INIT। इनिशियलाइजेशन मतलब INIT प्रोसेस को हम डेमन प्रोसेस बोल सकते हैं, बिकॉज इट विल करंट रनिंग द प्रोसेस अप टू और अंटिल द शट डाउन योर सिस्टम। जब आप सिस्टम ऑन करते हो तब से लेके जब शट डाउन करते हो तब तक एक डेमन प्रोसेस पूरे टाइम चलती रहती है, उसको INIT प्रोसेस बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। नाउ दैट INIT प्रोसेस फॉर्क्स मतलब न्यू प्रोसेस क्रिएट करती है एंड एग्जीक्यूट द गेटी। दिस गेटी इज व्हाट इट क्रिएट सम न्यू login prompt and check the password and user ID. Fine. So over here I show this figure. Now INIT मतलब initialize the process, नई process initialize हुई, that means कौन सा system call execute हुआ, fork, because fork is used for create a new process। जब भी कोई नई प्रोसेस क्रिएट होती है तो कौन सा सिस्टम कॉल लगता है, फॉर्क। नाउ इनिशियलाइज होता है, तुरंत गेटी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। ना व्हाट इज द गेटी प्रोसेस? गेटी प्रोसेस क्या करता है, एवरी टाइम जब कोई भी यूजर को लॉगिन प्रॉम्प्ट मिलता है तो वो लॉगिन प्रॉम्प्ट में उसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालता है। सो आफ्टर दैट द कंफर्मेशन ऑफ यूजर आईडी एंड पासवर्ड, द गेटी प्रोसेस गोज टू द स्लीप मोड, वापस वो स्लीप मोड में चली जाती है। सो गेटी प्रोसेस क्या करती है, एवरी टाइम गेटी प्रिंट द लॉगिन प्रॉम्प्ट, हर टाइम वो आपको लॉगिन प्रॉम्प्ट दिखाएगा फॉर सम रिस्पेक्टिव टर्मिनल एंड देन गोज टू स्लीप मोड। यस, जब भी आप कोई भी नया यूनिक्स के अंदर जब भी आप लॉगिन करने की ट्राई करते हो तो लॉगिन प्रॉम्प्ट आपको कौन दिखाता है, गेटी प्रोसेस। कौन दिखाता है, गेटी प्रोसेस। सो व्हेन the new process is started, the getty is initialization and it will give you the login prompt and go to the sleep mode. After that fork exec system call is executed and check the login. fork exec system call execute होगा और आपका लॉगिन चेक होगा। दैट मीन्स कि लॉगिन के टाइम पे आपने जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाला है वो करेक्ट है कि नहीं। व्हेन इट गेट सक्सेसफुल, अगर आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तो अगेन फॉर्क एंड EXEC जो सिस्टम कॉल है वो एग्जीक्यूट होता है और आपको शेल प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करता है आपके मॉनिटर पे, आपके टर्मिनल पे। शेल प्रॉम्प्ट मतलब आपको $, मतलब नाउ यू आर एबल टू राइट any of the command on your terminal. So at this way the shell is created. So are you getting this? First क्या होता है, initialization. INIT is a short form of initialization. It is a daemon process and it is keep running until the system gets shut down. Yes, when INIT the process is executed, the new process is started with the fork system call and it will generate the getty. What is the getty? Getty क्या करेगा, getty process आपको login prompt देगा and वापस से sleep mode में चला जाएगा। After the login prompt, the fork exec system call is executed and it will check at the login time your username and the password. If it is successful, then it will give you the shell prompt। पर shell prompt कौन देगा वापस, fork exec system call ही वापस आपको shell prompt देगी। So over here the steps are there। When a user attempt to log in, getty wakes up। getty क्या होगा, wake up होगा and fork exec the login program। ये जो system call है fork exec वो login program को वेरीफाई करेगा। क्या वेरीफाई करेगा कि आपने लॉगिन नेम एंड पासवर्ड जो एंटर किया है वो करेक्ट है कि नहीं। देन सेकंड स्टेप, द सक्सेसफुल लॉगिन। जब सक्सेसफुल लॉगिन हो जाता है तो वापस लॉगिन कौन से सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करेगा, फॉर्क EXEC। फॉर्क EXEC एग्जीक्यूट होता है एंड विच रिप्रेजेंटिंग द लॉगिन शेल। आपको अगर आपका पासवर्ड एंड लॉगिन आईडी करेक्ट होगा तो आपको वापस लॉगिन शेल मतलब शेल प्रॉम्प्ट $प्रॉम्प्ट आपको आपके टर्मिनल पे दिखाएगा। उसका मतलब क्या है, इट विल गिव यू द परमिशन टू राइट द कमांड एट सम स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट। फाइन, देन द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट इज व्हाट,
the INIT मतलब initialization process goes off to the sleep mode and waiting for the death of its children. उसका मतलब क्या है, जब ये INIT इनिशियलाइज हुई, आपने लॉग इन किया, आपका लॉग इन सक्सेसफुल हो गया, आपका शेल मतलब के क्रिएट हो गया, दैट मीन्स पेरेंट प्रोसेस ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। अभी जो भी शेल की प्रॉम्प्ट के ऊपर आप कमांड दोगे, CD, MKDIR, वो सब आपकी चाइल्ड प्रोसेस होगी। तो INIT क्या करेगा, INIT आपके शेल प्रॉम्प्ट पे जितने भी चाइल्ड प्रोसेस है वो चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट होने की वेट करेगा। किसकी वेट करेगा, कंप्लीट होने की, मतलब उसके डेथ होने की वेट करेगा। यस, आफ्टर दैट सी इनिशियलाइजेशन मतलब INIT गोज ऑफ टू स्लीप मोड, तब तक वो स्लीप मोड में रहेगी और वेटिंग करेगी उसके चाइल्ड प्रोसेस का डेथ होने की। When the user log out, जैसे ही आपने सारे कमांड्स कंप्लीट कर दिए एंड लॉग आउट हो गए, जैसे लॉग आउट हो गए, shall kill the all child process and death मतलब चाइल्ड प्रोसेस की डेथ हो गई है, वो इंटीमेटेशन किसको मिलेगा, INIT प्रोसेस को। किसको मिलेगा, INIT प्रोसेस को। जैसे यूजर ने लॉग आउट किया, सारी चाइल्ड प्रोसेस किल हो गई, सारी चाइल्ड प्रोसेस की डेथ हो गई, और जो डेथ हुआ उसका इंटीमेशन मिलेगा INIT प्रोसेस को। सो व्हेन यू लॉग इन, getEX executed, you get the shell prompt, and when you log out, shall also give the death and intimate to the INIT process. After some time, INIT again the wakes up and spawn the another getty, मतलब एक बार आपने कमांड पूरा कंप्लीट कर दिया, सारे टास्क कंप्लीट कर दिया, आपने शट डाउन कर दिया, वापस जब आपने सिस्टम ऑन किया तो वापस इनिशियलाइजेशन प्रोसेस क्या हो जाएगी, INIT वेक्स अप हो जाएगी, वापस एक नई गेटी आपको देगी फॉर गिविंग सम न्यू यूजर ID एंड पासवर्ड एंड वेट फॉर द लॉग इन अगेन। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द शेल। इनिशियलाइजेशन कब होगा, स्टार्टिंग होगा तो इनिशियलाइजेशन होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है INIT, दैट मीन्स इनिशियलाइजेशन। इट इज अ डेमोन प्रोसेस। डेमोन प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जो कंटिन्यू चलती रहे जब तक आप शट डाउन ना करो सिस्टम को, तब तक। सो दैट आर द डेमोन प्रोसेस एंड दैट कंटिन्यूस रनिंग until the system gets shut down. So in this way you can create the shell. Fine, all of you getting this, how to create the shell? Fine, okay.